Viewers, hours before former Prime Minister Manmohan Singh was to be laid to rest, a row has ensued over a memorial for him, prompting the BJP to ask Congress to not play dirty politics in his name. Congress Chief Mallikarjun Kharge had spoken to Prime Minister Narendra Modi about exploring the possibility of building a memorial for Manmohan Singh at the same site where the last rites would be held. In a press release issued later, the centre said that Union Home Minister Amit Shah had said that a place for Dr. Singh's memorial will be allocated. Listen to this. 13th Prime Minister Dr. Manmohan Singh's loss is a real loss for India's modern India. He is the architect of the modern India 2.0, which Pandit Nehru wanted to establish. He took forward that work in the 21st century and made India where we are. And India's liberalization story, as well as the direct benefit to the people, all been envisaged by Dr. Manmohan Singh's term, and his government for the past 10 years had made remarkable progress in uplifting more than 27 crore people out of poverty. And we all remember Dr. Singh's contribution to the country. कार्यकर्ता भी आए हैं, आम जनता के लोग जिनको राजनीति में मतलब नहीं है वो भी आए हैं। इससे मायने उनका जो योगदान था देश के लिए, उनके जो फैसले थे, चाहे वो यूएस से इंडिया का जो गठबंधन का एग्रीमेंट था न्यूक्लियर डील के लेके, उनकी दृढ़ता का परिचय था, आर्थिक स्थिति मजबूत करी, उदारीकरण उनकी देन है देश को। और जो सादगी भरा जीवन जिया उन्होंने, गांधीवादी विचारों के प्रतीक के रूप में वो रहे हमेशा। ऐसा व्यक्तित्व चला गया, पूरा देश शोक के अंदर है। तो लोगों को दुख इस बात का, इतना बड़ा आघात लगा। It's a very sad day, it's a very poignant moment. A very fine gentleman, a very renowned economist, a world statesperson is not with us today. It's a very sad day not only for India but the whole world. He lived a very noble and simple life. May his soul rest in peace. आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी है ये। बहुत अफसोस है मुझे, और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में रहने वाला और भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति शर्मसार है कि मोदी सरकार ये क्या कर रही है। देश के प्रधानमंत्री रह चुके एक व्यक्ति को आप अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसका निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार हुआ हो। We're also being joined by my colleague Akhil on the broadcast to get us more on the story. Akhil, a war of words has broken out. The demise of former Prime Minister Manmohan Singh has now been politicized by the Congress party. Tell me more about this. Well, Keshu, if you see earlier what we have seen that several Congress leaders come out in open and criticize this move by the government. Earlier what we have seen that the notification has also been released that a space will be granted for former
Prime Minister late Dr. Manmohan Singh's memorial. And earlier what we have seen that if you see allegations and counter allegations have been happening from both the sides. Amit Malviya came out from the BJP at the forefront, and he has said that it's the Congress party who is basically politicizing the entire issue. And if you see earlier what we have also seen that Jairam Ramesh, who is the communication in charge for the Congress party, has said that he's seeing this incident as a very unfortunate incident, that the government cannot even find a place for memorial for a statesman, a person who has been seen on both sides of the aisle as a consensus builder, a person who basically led India for a decade. So these are the allegations and counter allegations from both the parties, and a fresh allegation has come out in connection with the case that what we have seen, that former President Pranab Mukherjee's daughter Sharmishta Mukherjee has said that even when her father basically passed away at that point in time in 2020, the Congress party didn't even bother. Right, thank you Akhil for getting us those updates. We will keep tracking this story, but for now we'll be shifting focus. Remaining on the same story, there are more developments. Former President Pranab Mukherjee's daughter has hit out at the Congress leadership amid Dr. Manmohan Singh's memorial's row. Sharmishta Mukherjee claimed that when Pranab Mukherjee died in 2020, the Congress leadership did not even convene a condolence meeting to pay him the due respects. Listen to what Sharmishta Mukherjee had to say. देखिए, कल जो ट्वीट हैं, मैं किसी और मिस्टर CR केशवन जो कि पहले कांग्रेस में थे या बीजेपी में हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जिस तरह से कांग्रेस हाई कमांड PV नरसिम्हा राव जी, जो कि कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ का बाद उनकी बॉडी AICC में भी नहीं आने के लिए अलाउ किया गया। उनकी जो फ्यूनरल वो दिल्ली में उनके परिवार करना चाहते थे, तो वो भी नहीं अलाउ किया गया। तो उस बात की जिक्र करके उन्होंने ये ट्वीट किया। तो मुझे भी अपनी पुरानी कुछ यादें और बहुत ही सैड मेमोरीज, दुख वाली कहानी, मतलब मेमोरीज याद आ गए। बाबा का जब निधन हुआ तो मैं तब कांग्रेस में थी, एक्टिव पॉलिटिक्स में थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात से हुई कि कोई फॉर्मल CWC बुला के कोई रेजोल्यूशन, कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं पास करवाया गया। ये जितना मुझे एक आइडिया था कि ये कांग्रेस के कन्वेंशन हैं। सोनिया गांधी जी ने ज़रूर मुझे एक पर्सनल लेटर लिखा, बहुत ही अच्छे लेटर लिखे उन्होंने, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो होना चाहिए एक कॉन्डोलेंस मैसेज। और देखिए, प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद CWC कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर CWC बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से, पार्टी से डिज़ाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा की देहांत का बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब प्रेसिडेंट KR नारायणन की डेथ हो गई तो कॉन्डोलेंस CWC से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था CWC का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। तो ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे और भी झटका लगा कि इतने एक स्टॉलवर्ड लीडर ऑफ कांग्रेस, जो कि लगभग 45 साल तक कांग्रेस से इतने करीबी तरीके से जुड़े हुए थे, अब उनकी देहांत का बाद एक सिंपल बात है, एक CWC अगर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं तो किसका क्या फर्क पड़ता। We're also getting in more reactions from the BJP on Pranab Mukherjee's daughter's remarks, also including Manjinder Singh Sirsa. Let's take a listen. भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं रहे। वो इस देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। वो इस देश के अंदर एक क्रांति लेके आए,
एक फाइनेंशियल क्रांति लेके आए। कल से ये काम कांग्रेस लगी है। ऐसी गंदी राजनीति, जिंदों पे तो राजनीति करते थे, इस कतर गंदी करते थे कि आदमी को शर्म आ जाए, अभी जो इस दुनिया में नहीं रहे उन पे भी कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लेकर कि उनका भव्य मेमोरियल बनेगा एक ट्रस्ट बनकर, और ये जानकारी खड़गे जी को माननीय गृह मंत्री जी ने दी। नोटिफिकेशन जारी हुआ, बकायदा ये नोटिफिकेशन की कॉपी है जिसमें स्पष्ट किया गया कि उनके मेमोरियल के लिए ट्रस्ट कायम करके और उनके लिए बनाया था। और लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस तरह की गंदी राजनीति पे उतर आई है, ये तो हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। बताएं, ये इनसे ये पढ़ा ही नहीं जा रहा, ये पढ़ना ही, क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये इसमें अपनी राजनीति करना चाहते हैं और दिल्ली के चुनाव को लेकर इसमें वोटों की राजनीति करना चाहते हैं।